महत्वपूर्ण दिवस पर जोत जला के और पुष्पांजलि अर्पण करके इसका शुभारंभ करने वाले हैं माननीय मंत्री जी। आज का दिन 10 दिसंबर असम के इतिहास में एक पवित्र महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह उस दिन को याद करता है जब राज्य के लोग उन बहादुर और साहसी आत्माओं को श्रद्धांजलि और आदरांजलि देते हैं जिन्होंने असम आंदोलन में प्राणों की आहुति दी। शहीद दिवस यानी कि शहीद दिवस आंदोलन के पहले शहीद खगेश्वर तलवार की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जो 1979 को भवानीपुर चौक में पुलिस कर्मियों के साथ शहीद हुए थे। 1979 से 1985 तक राज्य के लोगों की पहचान की रक्षा के लिए 855 से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फोन पीछे करो, फोन पीछे भाई, हम लोग भी है, हम लोग को भी ले लें, पीछे रखो। वही दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मंत्री जी जोत जला के पुष्पांजलि देंगे, शहीदों का स्मरण करेंगे और इसके साथ साथ पूर्वा पश्चिम प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अधिकारी और उसके साथ साथ असम सोसाइटी ऑफ गोवा के सभी सदस्य उपस्थित हैं। माध्यम कलाकार शांतनु कविता और पीएसयू मिनिस्टर श्री रक्तिम सैकिया भी यहाँ पे उपस्थित हैं। केव्हा ना दिला तो अमोल भाई असं दे जाऊ दे का. अरे बाबा बूट भरून एकटोच मारत मारणारच होता. अब माननीय मंत्री जी के और आपके सामने असमी जातीय संगीत प्रस्तुत होने वाला है. सब ले लेंगे. चल, अरे बुला लो.
आता घेऊया रे, बसूया रे. अरे आगे नहीं, बाइक ले रहे हैं हम लोग के फंक्शन के लिए बैठ रहे हैं. बाइक लेते हैं ना. ठंडा खून फौलाद हुआ, ठंडा खून फौलाद हुआ. पढ़ाई पढ़ाई करते करते जंग भी चलाए, पढ़ाई करते करते उद्यम भी चलाए. तभी से असम का अकाड़ हुआ, इसी से असम का अकाड़ हुआ. माननीय केंद्र मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब हमारे साथ इधर उपस्थित है. आप सबको मालूम है, साहब ने 1979 और 85 के बीच में जो असम का उद्यम हुआ उसमें बहुत विशेष पात्र निभाया. और ये एसयू के हमारा मंत्री साहब उस टाइम पे स्टूडेंट लीडर भी थे और बहुत एक्टिव पार्ट लिया. मैं हमारी तरफ से, हमारी सभी सदस्यों की तरफ से, खास से हमारी असम भाई बहन की तरफ से साहब से एक ख्वाहिश करता हूं कि ये मौके पे मंच पर आके हमें अपने 2-3 वचन, हमें शब्द सुनाएं. सर, हमें आप, हमारी तरफ से एक ख्वाहिश है कि आप 2-3 शब्द हमें सुनाएं. दुखलो मत नहीं तो मारेगा भाई. नीचे कर लो, थोड़ा पीछे. एक्स्ट्रा पीछे आ गया तो वो भी कैमरा एक्स्ट्रा पीछे सर. আজি শহীদ দিৱস. অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যিসকল মহান বীৰ বীৰংগনাই 6 বছৰীয়া গণ আন্দোলনত আত্মবলিদান দিলে, সেইসকল মহান শ্বহীদক আজি শ্ৰদ্ধাৰে অসমৰ ৰাইজে সোঁৱৰিছে. আমিও আসাম সোসাইটি গোৱা, দিগন্ত মেধি আৰু ৰাজবংশী সভাপতি সম্পাদক হিচাপে আছে এই অনুষ্ঠানত. লগতে আসাম সোসাইটি গোৱাৰ অন্যান্য সদস্যসকল, আমাৰ নিউ মেংগলোৰ পোৰ্ট অথৰিটি আৰু গোৱা পোৰ্ট অথৰিটিৰ অধ্যক্ষ ৰামান্ন ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আমি সকলোৱে মিলি 6 বছৰীয়া গণ আন্দোলনৰ বীৰ শ্বহীদসকলক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে এই মহাস্থানত উপনীত হৈছো বা মহাস্থানত সমবেত হৈছো. আমি সকলোৱে জানো, অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন অসমত 6 বছৰ ধৰি অসমৰ ৰাইজে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত ভাগ লৈছিল. আৰু এই 6 বছৰীয়া গণ আন্দোলনত শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰকে ধৰি 860 গৰাকী বীৰ শ্বহীদে আত্মবলিদান দিছিল.
আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে, অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে, দেশৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে, কাৰণ দেশৰ একতা অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে, সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে এই আন্দোলনে অত্যন্ত গুৰুত্ব ভূমিকা পালন কৰিছিল। গতিকে আজি আমি সেইসকল মহান শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ, গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ আত্মাই যেন চিৰ শান্তি লাভ কৰে আৰু তেখেতসকলৰ আদৰ্শৰে যেন আমি সকলোৱে বৰ্তমান সময়ত সততা নিষ্ঠাৰে জাতিৰ বাবে, দেশৰ বাবে যাতে কাম কৰি যাওঁ। তেখেতসকলে যি আদৰ্শ দেখুৱালে, এই আদৰ্শক আমি জীৱনৰ কৰ্মপথাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মনত ৰাখি কাম কৰি যাব লাগিব। বিশ্বৰ বুকুত যদি ছাত্ৰ আন্দোলনৰ কথা উল্লেখ কৰা যায়, বিশ্লেষণ কৰা যায়, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাত্ৰ আন্দোলন হিচাপে ৬ বছৰীয়া গণ আন্দোলন সদায় বিশেষভাৱে এই চিহ্নিত হৈ থাকিব। গতিকে আজিৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে আসাম ছচাইটি গোৱা আপোনালোকে যিখিনি মহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এনেধৰণে বিশ্বৰ য'তেই নাথাকো কিয় আমি আমাৰ জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ আমি ভাৰতৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত, ভাৰতবৰ্ষক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অসমক অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ মানসিকতাৰে কাম কৰি যাব লাগিব। আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আমি সকলোৱে নিজৰ যিখিনি জাতীয় দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি যাবই লাগিব। গতিকে আজি শুভক্ষণত মই আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ বীৰ শ্বহীদসকললৈ কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচিছোঁ। তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যেন আমাকো সততা নিষ্ঠাৰে অসমীয়া জাতিৰ বাবে, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাৰ্থত দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাবলৈ যেন আশীৰ্বাদ দিয়ে, শক্তি দিয়ে, মনোবল দিয়ে, দৃঢ়তা দিয়ে। এইখিনিকে কৈ মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মোৰ একাষাৰ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। सर हिंदी में एक बाइट लेंगे जी। जी सर। हमारे असम और असमिया की अस्तित्व के लिए असम में सन 1979 से लेकर 85 तक जो छात्र आंदोलन हुई थी विदेशी घुसपैठ के खिलाफ, इस आंदोलन में जिन लोगों ने हमारी भविष्य के लिए आत्म बलिदान दिया, उन लोगों को नमन करने के लिए हम आज इस महास्थान में एकत्रित हुए हैं और देश की सुरक्षा और हिफाजत के लिए हमारे वीरों ने जो आत्म बलिदान दी, ये आज हम सब एकत्रित होकर इसको बड़ी श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं और साथ साथ में उनको हम भक्ति भावनाओं से नमन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इतना ही चाहूंगा
कि उन लोगों ने जो रास्ता हमें दिखाए, देशभक्ति का रास्ता, मातृभूमियों का रास्ता, और उसी रास्ते से हम लोगों को अगले दिनों में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए देश को आगे ले जाना होगा। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, सारा असम छात्र संघ के नेतृत्व में 6 साल का ये आंदोलन हुई थी, और इस आंदोलन ने सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के मानव समाज का दृष्टि आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि ये आंदोलन बापूजी की दिखाए हुए मार्गदर्शन से आंदोलन को किया गया था, नेतृत्व दिया गया था। अहिंसा नीति के द्वारा सब लोगों को एकत्रित करके देश की हितों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए इन महान कामों में जिन लोगों ने आत्म बलिदान दी है, हमारे शहीद खगेश्वर तालुकदार से लेकर 860 वीर शहीदों ने अपनी बलिदान दी है, इन लोगों को हम भक्ति भावना से आज नमन करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप लोगों ने विशेष रूप से आसाम सोसाइटी गोवा ने इसी कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और हमारी गोवा पोर्ट अथॉरिटी, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की अध्यक्ष रमन्ना, साथ साथ उनकी सारे साथियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। सब लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही हमें अपने वीर शहीदों को याद करके, नमन करके, उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाए, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, इस रास्ताओं में हमको अगले दिनों में चलना होगा निष्ठापूर्वक। अपने देश के लिए जो कर्तव्य हमें पालन करने हैं, इस कर्तव्य को हम भी निष्ठापूर्वक पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद। सर एक सवाल है, आप पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर भी हैं, गोवा के लिए कुछ खास है? ये सब बात